जिंदगी में वह खिड़की बंद कर दीजिए जो आपको तकलीफ पहुंचाती है। जिंदगी में वह खिड़की बंद कर दीजिए जो आपको तकलीफ पहुंचाती है, चाहे दृश्य कितना ही सुंदर क्यों न हो। नमस्कार, प्रणाम। मैं सुरेश सोनी इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम महामैराथन सीरीज के अंतर्गत जो है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसमें 300 MCQs है। इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। इसका मेन पर्पज यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं वो अवेलेबल हो पाएँ और शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में आप इनको रिवाइज कर सकें। इस पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। और जो मैराथन एंड महामैराथन सीरीज चल रही थी उस कैटेगरी के अंदर ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद अगला जो वीडियो आएगा वो आपके मॉक टेस्ट जो है पेपर 1 एंड पेपर 2 से रिलेटेड जो है वो पब्लिश किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए ये क्या कह रहा है। Which of the following is not an option to achieve reliable cost and effort estimate? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये डी। The ability to translate the size estimates into human effort, calendar time and dollars. Next question क्या कह रहा है? Dash is a project scheduling method that can be applied to software development. इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। Both PERT and CPM. PERT का मीनिंग आप जानते हैं, प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, एंड CPM क्रिटिकल पाथ मेथड। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है? In project execution and monitoring, every project is divided into multiple phases in which all major tasks are performed based on which phase of the SDLC. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A, milestones checklist. Next one, what is the recommendation distribution of effort for a project? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा A, 40-20-40. अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5. Which of the following risk is the failure of a purchased component to perform as expected? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहां पर A, प्रोडक्ट रिस्क. नेक्स्ट वन, which of the following is not achieved by an automated estimation tools? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा D, predicting client demands. Next one, which of these software characteristics are used to determine the scope of a software project? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C, information, objectives, function, performance. Next one, what can be used to complement decomposition techniques and offer a potentially valuable estimation approach in their own right? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B, empirical estimation models. नेक्स्ट वन, CLSS stands for, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A, कन्वेयर लाइन सॉर्टिंग सिस्टम. नेक्स्ट वन, which of the following is an important factor that can affect the accuracy and efficacy of estimates? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा A, प्रोजेक्ट साइज. अगला सवाल, which of the following is the example of configuration items? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D, all of the mention, जिसमें SCM प्रोसीजर, सोर्स कोड, सॉफ्टवेयर डिजाइन डिस्क्रिप्शन सारे आएंगे. नेक्स्ट वन, which one of the following is not an application of embedded software product? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B, पैटर्न रिकॉग्निशन, गेम प्लेइंग. क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन, डैश is an activity that distributes estimated effort across the planned projection duration by allocating the effort to specific software engineering tasks. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग. नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग इंक्रीमेंटल मॉडल? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D, easier to test and debug
and it is used when there is a need to get a product to the market early. Yes, next one. Which software engineering team has no permanent leader? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज्ड. अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16. डैश threatens the quality and timeliness of the software to be produced. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, टेक्निकल रिस्क. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17. एवरी टास्क that is scheduled should be assigned to a specific team member is termed as. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, defined responsibilities. Next one. Dash uses empirically derived formulas to predict effort as a function of LOC or FP. इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, both FP based estimation and COCOMO. Next one. Question number 19. Dash is not a size measure for software product. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी. क्या कह रहा है इसका? क्वेश्चन नंबर 20, 20th. विच फॉर्मूला इज करेक्ट टू कंप्यूट द फंक्शन पॉइंट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एफ पी इक्वल टू काउंट टोटल इनटू in large bracket 0.65 plus 0.01 into some function. Yes, next one. Size and complexity are a part of. इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, प्रोडक्ट मैट्रिक्स. नेक्स्ट वन. हाउ इज विन विन स्पायरल मॉडल डिफरेंट फ्रॉम स्पायरल मॉडल? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इट डिफाइंस अ सेट ऑफ नेगोशिएशन एक्टिविटीज एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पास अराउंड द स्पायरल. अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 23. मीन टाइम टू चेंज फॉल्स द कैटेगरी ऑफ. इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, मेंटेनेबिलिटी. डैश मैट्रिक गिव्स द आइडिया अबाउट द कंटेंट्स ऑन अ वेब पेज. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, वर्ड काउंट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25. द इंटेंट ऑफ प्रोजेक्ट मैट्रिक्स इज. इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मिनिमाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट शेड्यूल एंड असेसिंग प्रोजेक्ट क्वालिटी ऑन ऑनगोइंग बेसिस. क्वेश्चन नंबर 26. विच ग्राफिकल टेक्निक इज यूज्ड to finding if changes and variation in metric data are meaningful? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, कंट्रोल चार्ट. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 27. इन विच एस्टिमेशन सॉफ्टवेयर साइज शुड बी नॉन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, एफर्ट एस्टिमेशन. नेक्स्ट वन, SCM स्टैंड फॉर. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट. क्या कह रहा है नेक्स्ट वन? सॉफ्टवेयर मैनेजर इज एंगेज्ड विद सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट एक्टिविटी. ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर. ये प्रोजेक्ट प्लानिंग, मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस, कम्युनिकेशन अमॉन्ग द स्टेक होल्डर. आ जाएगा आपका डी, ऑल द मेंशन. Next one. Which of these activities is not one of the activities recommended to performed by independent SQA group? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, रिपोर्ट एनी एविडेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस टू सीनियर मैनेजमेंट. नेक्स्ट वन. सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी प्रॉब्लम्स कैन ऑलमोस्ट बी ट्रेस्ड टू. इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, बी एंड सी, यानी कि आपका हो जाएगा एरर्स इन डिजाइन एंड एरर्स इन इम्प्लीमेंटेशन, दोनों आ जाएंगे इसमें. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 32, 32 नंबर. द सॉफ्टवेयर इक्वेशन कैन बी यूज टू शो दैट बाय एक्सटेंडिंग द प्रोजेक्ट डेडलाइन स्लाइटली. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, फ्यूअर पीपल आर रिक्वायर्ड. अगला सवाल. If you were to create client server applications, which model would you go for? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, concurrent model.
अगला सवाल, अ टास्क सेट इज अ कलेक्शन ऑफ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इंजीनियरिंग वर्क टास्क, माइलस्टोन्स, डिलीवरेबल्स। अगला सवाल, द पर्पज ऑफ अर्न वैल्यू एनालिसिस इज टू, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी प्रोवाइड अ क्वांटिटेटिव मीन्स ऑफ असेसिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। नेक्स्ट वन, इफेक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फोकसेस ऑन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस, प्रोजेक्ट। नेक्स्ट वन, which of the following risks are derived from the software or hardware technologies that are used to develop the system, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी टेक्नोलॉजी रिस्क। नेक्स्ट वन, what assesses the risk and your plans for risk mitigation and revises these when you learn more about the risk, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए रिस्क मॉनिटरिंग। Next one, the best project team organizational model to use when tackling extremely complex problem is the, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओपन पैराडिग्म। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 40, 40 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फोकस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पॉपुलरिटी। नेक्स्ट वन, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट कैन अंडरस्टैंड बाय द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू 1, इसका मीनिंग हो जाएगा बी करेक्ट आंसर, इट मींस द स्ट्रक्चर विल ओनली सपोर्ट द एक्चुअल लोड। नेक्स्ट वन, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज जनरली यूज्ड इन सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए रेग्रेशन टेस्टिंग। नेक्स्ट वन, which structures view shows the mapping of a software onto hardware, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी फिजिकल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वन, according to the time estimates made by the PERT planners, the maximum time that would be needed to complete an activity is called as, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी pessimistic time estimate। नेक्स्ट वन, what is the popular method of organizing wireless network topologies, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी क्लस्टर। नेक्स्ट वन, what is the role of communication protocol in IoT, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी मैक लेयर इशू। नेक्स्ट वन, द UML was designed for describing, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी both object oriented systems and architectural design। Next one, question number 48, 48 number, what is the decomposition technique required, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑल ऑफ द मेंशन, जिसमें आपकी ए और बी दोनों आ जाएंगे। नेक्स्ट वन, इफ अ डायरेक्ट अप्रोच टू सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट साइजिंग इज टेकन, साइज कैन बी मेजर्ड इन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए LOC लाइन ऑफ कोड्स। Next one, who suggested the 4 different approaches to the sizing problem, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पुतनाम एंड मायर्स। नेक्स्ट वन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सपीरियंस इज अ पार्ट ऑफ विच फैक्टर ऑफ कोकोमो कॉस्ट ड्राइवर्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए पर्सनल फैक्टर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 52, if an indirect approach is taken then the sizing approach is represented as, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी FP फंक्शन पॉइंट। नेक्स्ट वन, which 4 framework activities are found in the extreme programming, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी प्लानिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग एंड टेस्टिंग। नेक्स्ट वन, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कैन बी डन ऑन, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर लेवल। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द टोटल एफर्ट कॉस्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी कॉस्ट ऑफ लंच टाइम फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, 56 नंबर,
क्या कह रहा है? विच टेक्निक इज एप्लीकेबल व्हेन अदर प्रोजेक्ट्स इन द सेम एनालॉजी एप्लीकेशन डोमेन हैव बीन कंप्लीटेड? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, एस्टिमेशन बाय एनालॉजी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 57, SMI स्टैंड फॉर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर मैच्योरिटी इंडेक्स। नेक्स्ट वन, अ प्रोजेक्ट यूजुअली हैज अ टाइमलाइन चार्ट विच वाज डेवलप्ड बाय, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, हेनरी गैंट। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 59, साइज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग विच ऑफ दीज मेथड्स, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी, जिसके अंदर ये दोनों आ जाएंगे आपके। नेक्स्ट वन, इन रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस व्हाट मेक नोट ऑफ ऑल पॉसिबल रिस्क दैट मे अकर इन द प्रोजेक्ट, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड फॉर अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज डिटरमाइंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आफ्टर एन एस्टिमेट ऑफ द डेवलपमेंट एफर्ट इज मेड। नेक्स्ट वन, FP based estimation technique require a problem decomposition based on, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा A, information domain values। Next one, what are the 5 basic parameters of software economics, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा A, size, process, personal environment required, quality। Next one, what is the most significant way to improve the affordability and return on investment, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, producing a product that achieves the design goals with a minimum amount of human generated source materials। Next one, how many core metrics are used in managing a modern process, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, 7। Next one, what is SIA, Software Engineering Environment Authority, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, SIA is responsible for automating the organization's process and maintaining the organization's standard environment। Next one, which of the following is not one of the guiding principles of software project scheduling, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, मार्केट असेसमेंट। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द मॉडल बेस्ड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अ मॉडल इज द रिलेटिवली डिपेंडेंट एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अ सिस्टम। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट एक्सपेंसिव कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, external failure costs। Next one, which of the following are ISO 9126 software quality factors, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, ए, बी एंड सी, यानी आपकी फंक्शनलिटी, पोर्टेबिलिटी और उसके बाद हो जाएगा सी, ये जाएगा रिलायबिलिटी। यस। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 71, which of the following activities is not a part of software re-engineering process models, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटोटाइपिंग। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अ बिजनेस प्रोसेस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेस्टिंग सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट वन, द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ अ प्रोग्रेस ऑन अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज द कंप्लीशन, करेक्ट आंसर सी, एंड सक्सेसफुल रिव्यू ऑफ अ डिफाइंड software work product। Next one, the 40-20-40 rule suggests that the least of amount of development effort be spent on, सबसे जो कम लगता है spent किस पे हुआ है, C, coding। Next one, a technique for performing quantitative analysis of progress is known as, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका B, EVA। Yes, next one,
Dash version of COCOMO states that once requirements have been stabilized, the basic software architecture has been established. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अर्ली डिजाइन स्टेज मॉडल. नेक्स्ट वन, डैश इज नॉट अ वेब इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैट्रिक. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नंबर ऑफ इनहेरिटेड ऑब्जेक्ट्स. Next one, based on which entity the matrix are developed by size for size oriented matrix. इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड्स. नेक्स्ट वन, हाउ इज प्लान ड्रिवन डेवलपमेंट डिफरेंट फ्रॉम अजाइल डेवलपमेंट. इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, इटरेशन अकर्स विद इन एक्टिविटीज. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? व्हाट डज द एक्रोनिम स्क्रम स्टैंड फॉर. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, स्क्रम डजंट स्टैंड फॉर एनीथिंग, इट इज अ फ्रेमवर्क नेम. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 81, द मेन डिफरेंस बिटवीन डिफेक्ट प्रिवेंशन एंड डिफेक्ट डिटेक्शन इन एसक्यूए इज. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, prevention focuses on stopping defects from being introduced in the first place, while detection focuses on finding defects after they have been introduced. Next one, question number 82, reliability as a software quality attribute refers to. इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, the ability of the software to perform its required functions. Next one, question number 83, which is a software configuration management concept that helps us to control change without seriously impeding justifiable change. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, baselines. Next one, robustness answers which of the following description. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, processes continuous in spite of unexpected problem. Next, question number 85 क्या कह रहा है? Which of the following is the process of assembling program components, data and libraries and then compiling and linking these to create an executable system. इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, सिस्टम बिल्डिंग. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 86, when several processes access the same data concurrently and the outcome of the execution depends on the particular order in which the access takes place is called. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रेस कंडीशन. Next one, question number 87, which of the following is not project management goal. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, अवॉइडिंग कस्टमर कंप्लेंट्स. नेक्स्ट वन, प्लांट वैल्यू इन प्रोजेक्ट ट्रैकिंग रिप्रेजेंट्स. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, द एक्चुअल कॉस्ट स्पेंड. सॉरी इसका करेक्ट आंसर ये रॉन्ग है. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, द ऑथोराइज्ड बजट असाइंड टू द वर्क शेड्यूल. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 89, कॉस्ट वेरिएंस इज अ प्रोजेक्ट ट्रैकिंग मैट्रिक्स कैलकुलेटेड एज. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एक्चुअल कॉस्ट माइनस अर्न्ड वैल्यू. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है? व्हाट इज अ लीन शेड्यूलिंग इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कंटेक्स्ट. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, फोकसिंग ऑन मैक्सिमाइजिंग वैल्यू फ्लो एंड मिनिमाइजिंग वेस्ट. नेक्स्ट वन, व्हाट आर द साइंस दैट अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज इन ट्रबल. इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, जिसमें ये तीनों जो करेक्टरिस्टिक हैं ये इंक्लूड हो जाएंगे. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92
क्या कह रहा है? What can be done to get the best from the people in the software development? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्रोवाइड बेटर इंसेंटिव्स, वर्क एनवायरमेंट्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 93, फ्लो मैट्रिक्स लाइक लीड टाइम एंड साइकिल टाइम आर एडवांस्ड ट्रैकिंग इंडिकेटर्स इन अजाइल और लीन दैट प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, द एफिशिएंसी ऑफ द वैल्यू स्ट्रीम। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 94, विच कोडिंग एलिमेंट इज जनरली ओमिटेड एट द एंड ऑफ लाइन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, व्हाइट स्पेस। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ एफर्ट एंड कॉस्ट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर सी, सिस्टम साइज। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 96, इन साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स आर डेवलप्ड बेस्ड ऑन द। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट इज द मेन फैक्टर यूज्ड इन मोस्ट कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, द एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट वन, द 4GT मॉडल इज अ पैकेज ऑफ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सॉफ्टवेयर टूल्स। नेक्स्ट वन, विच मे बी एस्टिमेटेड आइदर इन टर्म्स ऑफ के LOC और बाय कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ फंक्शन पॉइंट्स इन द सॉफ्टवेयर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, what do the most cost estimation models assume about the relationship between the cost and effort। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अ सिंपल लीनियर रिलेशनशिप। और इसके साथ ही अपने जो 100 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो। 101 क्या कह रहा है? विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रू। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, वेब बेस्ड सिस्टम्स हैव लेड टू द डिग्रेड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। नेक्स्ट वन, क्या कह रहा है? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मेजर फॉर करेक्टनेस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, डिफेक्ट्स पर KLOC। नेक्स्ट वन, what is the limitation of laboratory experiments used to determine the equation of a cost estimation model। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, they are not representative of industrial settings। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 104, which of these doesn't affect different types of software as a whole। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, flexibility। Next one, question 105, which of the following doesn't affect the software quality and organizational performance। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, मार्केट। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 106, what is one of the strategies for improving software productivity। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, राइटिंग लेस कोड। ये यहाँ पर मैच द फॉलोइंग दिया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये एग्जाम के लिए। देखिए, ये रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो मेंटेनेंस है वो परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के साथ मैच करेगा, यानी 4 का आंसर किसके साथ होगा? डी। वो केवल इसके अंदर ही आ रहा है वैसे भी, तो इसके हिसाब से अपना आंसर यही होना चाहिए। और जो रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन है वो ये आपका जो मैच करेगा ये एनालिसिस, डिजाइन है ये आ जाएगा स्ट्रक्चर इसके साथ में, और इम्प्लीमेंटेशन है ये हो जाएगा मॉड्यूल डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट मेजर ऑफ SE प्रोसेस। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, एफिशिएंसी। नेक्स्ट वन,
Question number 109. What is the main challenge in estimating the cost of a software development project? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, डिफिकल्टी इन एक्यूरेटली एस्टिमेटिंग द कॉस्ट अपफ्रंट. Yes, next one. Explain what is meant by product with reference to one of the 8 principles as per the ACM or IEEE code ethics. इसके हिसाब से तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी. द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स शैल एंश्योर दैट द प्रोडक्ट एंड रिलेटेड मॉडिफिकेशन मीट द हाईएस्ट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स पॉसिबल. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 111 यानी 111. What is the problem with the different cost estimation model using different measures and cost drivers? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. It makes mutual comparisons difficult. Next one, identify the correct statement. Software engineer shall, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. Act consistently with the public interest. Next question number. What is the definition of total cost in the context of software development projects? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी. द कॉस्ट ऑफ द इनिशियल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एफर्ट ओनली. नेक्स्ट वन, 6 Sigma in SQA aims for defect reduction by focusing on. इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी. minimizing process variability. Next one, SPMP stand for, इसका फुल फॉर्म बताना है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी. सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान. नेक्स्ट वन, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. टू एंश्योर project completion within scope, time and budget. Next one, formal methods in SQA are advanced techniques that involve. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. using mathematical notation and logic to specify. Next one, what does the acronym PMBOK stand for in project management? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 119. बेसलाइन डेविएशन एनालिसिस इन SCM इन्वॉल्व्स. इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी. सिस्टमेटिकली ट्रैकिंग एंड एनालाइजिंग अनऑथोराइज्ड और अनकंट्रोल्ड चेंजेस. Next one, in software project management, what does the term scope creep refer to? ये जो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज होती है तो आप ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. एक्सपेंशन ऑफ प्रोजेक्ट स्कोप विदाउट एडजस्टमेंट्स टू टाइम, कॉस्ट एंड रिसोर्सेस. नेक्स्ट वन, a software dash provides the framework for from which a comprehensive plan for software development can be established. इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी. प्रोसेस. नेक्स्ट वन, which of the following is a key component of a project management plan? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी. कम्युनिकेशन प्लान. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, 123 नंबर क्या कह रहा है? विच एलिमेंट ऑफ द मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम डील्स विद अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम दैट द सॉफ्टवेयर इज इंटेंडेड टू सॉल्व. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी. प्रोडक्ट. नेक्स्ट वन, व्हाट इज द रोल ऑफ अ प्रोजेक्ट स्पॉन्सर? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका B. to provide resources, support and funding for the project. Next one, question number 125.
What all has to be identified as per risk identification, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जिसमें ये तीनों आ जाएंगे आपके, थ्रेट्स, वल्नरेबिलिटी एंड कंसिक्वेंसेस। नेक्स्ट वन, मैनेजिंग स्टेकहोल्डर एक्सपेक्टेशन इज अ की एस्पेक्ट ऑफ मैनेजिंग पीपल बिकॉज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मिसअलाइंड एक्सपेक्टेशंस कैन लीड टू डिससेटिस्फैक्शन। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज बेस्ट सुटेड, बेस्ट डिफाइंड बाय द स्टेटमेंट देयर विल बी ए चेंज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट विथ डिफरेंट प्रायोरिटीज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मैनेजमेंट चेंज। नेक्स्ट वन, which technique is used to track the actual progress of a project against the planned progress? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, earned value analysis। नेक्स्ट वन, dash is related to the overall functionality of the delivered software। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, फंक्शन रिलेटेड मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 130, व्हाट डज केपीआई स्टैंड फॉर इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। नेक्स्ट वन, which phase in the software development life cycle is primarily concerned with the defining what the system should do? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, requirements analysis। नेक्स्ट वन, कोकोमो was developed initially by the, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, BW Boehm। नेक्स्ट वन, mean time to change falls the category of, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मेंटेनेबिलिटी। नेक्स्ट वन, which methodologies emphasizes iterative development and customer feedback? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अजाइल। नेक्स्ट वन, डैश इज द टास्क ऑफ प्रोजेक्ट इंडिकेटर्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, help in assessment of status of ongoing project and track potential risk। Next one, which of the following technique is used for estimating project costs and duration? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, PERT, प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। नेक्स्ट वन, यूजेबिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंटेलेक्चुअल स्किल टू लर्न द सिस्टम, टाइम रिक्वायर्ड टू बिकम मॉडर्नली एफिशिएंटली इन सिस्टम यूजेज, नेट इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ द मेंशन, तीनों आ जाएंगे उसमें। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट चार्टर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, टू ऑथराइज द प्रोजेक्ट एंड आउटलाइन इट्स ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, टू मीट प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। For purposes of determining the major engineering tasks and distributing them on project timeline, the project manager should assume that the process model used is, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी ऑफ द अबव, लीनियर, सीक्वेंशियल और इटरेटिव, कोई भी मॉडल हो सकता है। यस, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 141, which document outlines the work to be completed in a project? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, WBS। नेक्स्ट वन, द पर्पज ऑफ अर्न्ड वैल्यू एनालिसिस इज टू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्रोवाइड अ क्वांटिटेटिव मीन्स ऑफ असेसिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। नेक्स्ट वन, व्हाट डज द टर्म डिलीवरेबल मीन इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, अ मेजरेबल आउटपुट ऑफ द प्रोजेक्ट।
नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 144, 144, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, मार्केट असेसमेंट। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ चेंज रिक्वेस्ट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, टू फॉर्मली प्रपोज ऑल्टरेशंस टू द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट वन, द टास्क और एक्टिविटी नेटवर्क इज यूजफुल मैकेनिज्म फॉर? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ई, जिसके अंदर आपकी ये बी और सी दोनों जो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। नेक्स्ट वन, इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट व्हाट इज द किक ऑफ मीटिंग? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, अ मीटिंग टू बिगिन प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। नेक्स्ट वन, द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ प्रोग्रेस ऑन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज द कंप्लीशन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एंड सक्सेसफुल रिव्यू ऑफ डिफाइंड सॉफ्टवेयर वर्क प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लेसन्स लर्न्ड इन अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, टू इम्प्रूव फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट वन, अ टास्क सेट इज अ कलेक्शन ऑफ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इंजीनियरिंग वर्क टास्क, माइलस्टोन्स, डिलीवरेबल्स। इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट व्हाट इज अ बफर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एक्स्ट्रा टाइम और रिसोर्सेज allocated to manage risks. Next one, what is the project execution? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, the phase where project plans are put into action. Yes, next question number 153, 153 नंबर, what is a project life cycle? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, the series of phases a project goes through from initiation to closure. Next one, question number 154, what does work breakdown structure WBS help with? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, decomposing a project into smaller manageable components. Yes, next one, in software engineering the method of CMM model is used to? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, improve the software process. Which of these are valid reasons for measuring software processes, products and resources? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, जिसमें आपका ए, बी और ये डी शामिल हो जाएंगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157, which of the options is correct for the prototyping model of a software development? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका C, when a customer can't define requirements clearly. Next one, process indicators enable a software project manager to? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर assess the status of an ongoing project, track potential, adjust workflow. Okay, all of the above, correct. नेक्स्ट देखिए 159, in which model the requirements are implemented through its category? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, evolutionary development model. नेक्स्ट वन, पब्लिक मैट्रिक्स आर यूज? करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, सी एंड डी, जिसमें आपके दोनों आ जाएंगे, शामिल हो जाएंगे, देख लीजिएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 161, द प्रोजेक्ट मैट्रिक्स आर इंटेंडेड बाय? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका डी, असेसिंग प्रोजेक्ट क्वालिटी ऑन ऑनगोइंग बेसिस एंड मिनिमाइजेशन ऑफ द डेवलपमेंट शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 162, 162 नंबर क्वेश्चन, which of the following items are not measured by software project matrix? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मार्केट।
इन एसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट मेजर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी एफिशिएंसी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एलओसी लाइन्स ऑफ कोड एज अ साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, ए एंड सी। इसमें एलओसी इज इजीली कंप्यूटेड और सी यानी एलओसी इज लैंग्वेज इंडिपेंडेंट मेजर, ये दोनों हो जाएंगे इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 165 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन वेब पेज सिमिलरिटी इज नॉट क्लासिफिकेशन ऑफ द वेब इंजीनियरिंग मैट्रिक, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, ट्रैफिक बेस्ड। नेक्स्ट वन, which of the following are advantages of using function point as a measure of the functionality delivered by a software application, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, जिसके अंदर आ जाते हैं सी और डी दोनों। ये भी जो है इंडिपेंडेंट मेजर हो जाएगा प्रीवियस एलओसी की तरह। एंड एक और करेक्टरिस्टिक है, एफ बी कैन बी कंप्यूटेड बिफोर अ डिजाइन इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट वन, इफ चेंजेस एंड वेरिएशन in metric data are meaningful, which graphical technique is used the process is known as, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कंट्रोल चार्ट। yes, next one, which of the following is not a measure that can be collected from a web application project, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कस्टमाइजेशन इंडेक्स। नेक्स्ट वन, metrics are developed based on dash in the size oriented matrix, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 170 170, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर क्वालिटी फैक्टर्स इज मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय द रेडिकल चेंजेस टू कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। वो जो फीचर है, जो करेक्टरिस्टिक्स है, वो इसके अंदर गिवन नहीं है एक्चुअली में। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द की बेनिफिट ऑफ एडॉप्टिंग अ डेवऑप्स अप्रोच इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहां पर बी, इंटीग्रेटिंग डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस टू शॉर्टन द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 172 172, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड यूजफुल मेजर ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, करेक्टनेस, मेंटेनेबिलिटी, इंटीग्रिटी, यूजेबिलिटी। नेक्स्ट वन, विच इज रिक्वायर्ड फॉर डिटरमाइनिंग फंक्शन पॉइंट इन एफपीए इज नॉट एन इंफॉर्मेशन डोमेन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नंबर ऑफ errors. Next one, why is it important to measure the process of software engineering and software it produces, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहां पर सी, टू डिटरमाइन वेदर अ सॉफ्टवेयर ग्रुप इज इंप्रूविंग और नॉट। नेक्स्ट वन, हाउ इज द इंक्रीमेंटल मॉडल डिफरेंट फ्रॉम स्पाइरल मॉडल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, प्रोग्रेस इज मेजर्ड इन इंक्रीमेंटल मॉडल। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 176 176, व्हाट डज अ हाई वैल्यू फॉर एरर्स पर KLOC जनरली इंडिकेट, व्हाट डज अ हाई वैल्यू ऑफ एरर्स ज्यादा आ रही है, इसका मतलब एरर जब ज्यादा आ गई तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लोअर सॉफ्टवेयर क्वालिटी। नेक्स्ट वन, to be an effective aid in process improvement the baseline data used must be, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ई, बी, सी, ये दोनों इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, आप देख लीजिएगा इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 178 178, विच ऑफ द फॉलोइंग बिटवीन द टू और मोर वेब पेजेस वेब इंजीनियरिंग मैट्रिक मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वेब पेज सिमिलरिटी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 179, विच ऑफ द वन इज नॉट एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल, इसका करेक्ट आंसर आपका जो है ये हो जाएगा ए, कंकरेंट डेवलपमेंट मॉडल।
नेक्स्ट वन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ प्रोजेक्ट कंट्रोल चेक पॉइंट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, टू असेस प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस एट स्पेसिफिक पॉइंट्स इन टाइम एंड मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट्स। व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ रिस्क ऑडिट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ अ रिस्क रेस्पॉन्सेस। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 182, 182 नंबर क्या कह रहा है? विच डॉक्यूमेंट आउटलाइंस द प्रोसेस फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ द रिस्क ऑन द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट वन, व्हाट डज द टर्म स्कोप वेरिफिकेशन रेफर टू इन प्रोजेक्ट कंट्रोल? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, द प्रोसेस ऑफ एंश्योरिंग दैट द प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स मीट द एग्रीड अपॉन स्कोप। नेक्स्ट वन, इन रिस्क मैनेजमेंट व्हाट इज द पर्पज ऑफ फॉल बैक प्लान? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव इफ द प्राइमरी रिस्क रेस्पॉन्स प्लान फेल्स। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द अर्न वैल्यू मैनेजमेंट यूज्ड फॉर इन प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, टू मेजर प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस अगेंस्ट द प्रोजेक्ट बेसलाइन। नेक्स्ट वन, 187, 187, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रिड्यूसिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिस्क अकरिंग। नेक्स्ट वन, व्हाट डज द कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स सीपीआई जो है वो मेजर? अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ए, द रेशियो ऑफ द अर्न वैल्यू टू द एक्चुअल कॉस्ट। नेक्स्ट वन, विच टेक्निक हेल्प्स in tracking and monitoring changes to the project scope? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, चेंज कंट्रोल प्रोसेस। नेक्स्ट वन, व्हाट डज परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोजेक्ट प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज। नेक्स्ट वन, which of the following represents a high probability low impact risks? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, likely to occur but with minimal consequences। next one, what is the key activity in project control? yes, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, tracking project progress and performance। next one, 193, what is the purpose of risk assessment metric? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, टू रैंक रिस्क बेस्ड ऑन देयर इम्पैक्ट एंड प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट, विच टेक्निक इज यूज्ड टू कंपेयर एक्चुअल प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस अगेंस्ट द प्लान परफॉर्मेंस? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अर्न वैल्यू मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन, Which of the following is a reactive risk management strategy? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, हैंडलिंग द रिस्क आफ्टर इट अकर्स। नेक्स्ट वन, व्हाट इज अ रिस्क रजिस्टर यूज्ड फॉर इन प्रोजेक्ट कंट्रोल? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, टू डॉक्यूमेंट एंड मैनेज आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट रिस्क। नेक्स्ट वन, What does the term risk appetite refers to? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, द टॉलरेंस लेवल ऑफ रिस्क एन ऑर्गेनाइजेशन इज विलिंग टू टेक। यस, क्वेश्चन नंबर 198, अपने पास में टोटल 300 क्वेश्चन है, तो आप देखिए आगे। क्वेश्चन नंबर 198, 198 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म प्रोजेक्ट स्कोप क्रीप रेफर टू? मैंने आपको कहा था ये वाला जो क्वेश्चन है प्रोजेक्ट स्कोप क्रीप से रिलेटेड, ये अलग अलग लैंग्वेज में पूछा जाता है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसकी लैंग्वेज को। ए, द ग्रेजुअल एक्सपेंशन ऑफ प्रोजेक्ट स्कोप विदाउट प्रॉपर
कंट्रोल। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। एंड अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200 राउंड फिगर में आ रहा है। क्या कह रहा है? विच टेक्निक हेल्प्स इन फोरकास्टिंग फ्यूचर प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन करंट ट्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अर्न वैल्यू मैनेजमेंट। और इसके साथ अपने 200 जो क्वेश्चन है 200 क्वेश्चन वो कंप्लीट हो गए। दोस्तों एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which risk response strategy is used when the risk is minor and doesn't significantly impact the project? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिस्क एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेरिएंस एनालिसिस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, टू डिटरमाइन द रीजंस फॉर डेविएशंस फ्रॉम द प्रोजेक्ट प्लान। नेक्स्ट वन, which of the following techniques helps quantify the impact of the risks? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, मोंटी कार्लो सिमुलेशन। नेक्स्ट वन, व्हाट डज रिस्क एस्केलेशन रेफर टू इन रिस्क मैनेजमेंट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ट्रांसफरिंग द रिस्क टू हायर मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 205, What is the primary goal of a quality control in project management? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, to ensure that project deliverables meet quality standards. Next one, which of the following is an external risk to software project? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, supplier delays. Next one, which of the following is not a common method for project performance measurement? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मोंटी कार्लो सिमुलेशन। नेक्स्ट वन, which document provides a detailed description of the project scope, objectives and deliverables? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, प्रोजेक्ट चार्टर। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, टू डिफाइन एंड कंट्रोल व्हाट इज इंक्लूडेड एंड एक्सक्लूडेड इन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग द प्रोजेक्ट शेड्यूल टू रिफ्लेक्ट चेंजेस एंड अपडेट्स? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, शेड्यूल कंट्रोल। नेक्स्ट वन, which process ensures that all the required project work is included in the scope? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, स्कोप डेफिनेशन। नेक्स्ट वन, which tool helps in understanding the relationships and dependencies between the different tasks in a project? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। इसमें गैंट चार्ट, पर्ट चार्ट एंड WBS सारे आ जाएंगे। नेक्स्ट वन, 213 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, अ हायरार्किकल डिकम्पोजिशन ऑफ द टोटल स्कोप ऑफ वर्क। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है? व्हाट इज द क्रिटिकल पाथ मेथड यूज फॉर? मैं काफी इसके न्यूमेरिकल करवा चुका हूँ, बता चुका हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है तो आप लोगों को डेफिनेशन तो पता होनी ही चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, टू डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट पाथ टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट वन, विच प्रोसेस इन्वॉल्व फॉर्मल एक्सेप्टेंस ऑफ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स? यहां जो बात कर रहा है, which process involves formal acceptance of completed project deliverables? ओके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, स्कोप वेरिफिकेशन। नेक्स्ट वन, which of the following is the key component of a project schedule? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, टास्क डिपेंडेंसीज। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 217, 217,
व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोजेक्ट डिलीवरेबल? प्रोजेक्ट डिलीवरेबल जो है सिंपल चीज है, दिस इज एन आउटपुट। तो उस फॉर्म को शॉर्ट वर्ड में याद रख लीजिए, यहां पर आ जाएगा अ कंप्लीटेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। मेंटेनेबिलिटी इंडेक्स समटाइम्स इंक्लूड्स LOC एज अ कंपोनेंट बिकॉज, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, कोड साइज कैन कोरिलेट विथ कॉम्प्लेक्सिटी। क्वेश्चन नंबर 219, which technique is used to estimate the duration of a project task based on historical data and expert judgment? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, एनालॉगस एस्टिमेटिंग। नेक्स्ट वन, if a project consistently shows high LOC per person month, it might indicate, एक नोट कर लीजिए, यहां कह रहा है हाई LOC, तो इसका मतलब है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, हाई प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट वन, व्हाट डज क्रैशिंग अ प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग मीन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एडिंग एडिशनल रिसोर्सेज टू शॉर्टन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, व्हाट डज द टर्म स्कोप वैलिडेशन इन्वॉल्व्स? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कंफर्मिंग दैट डिलीवरेबल्स मीट द रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 to 3, व्हाट इज अ लैग इन प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, द टाइम डिले बिटवीन द स्टार्ट ऑफ वन टास्क एंड द स्टार्ट ऑफ अ डिपेंडेंट टास्क। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्कोप बेसलाइन इन स्कोप मैनेजमेंट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, टू प्रोवाइड अ रेफरेंस पॉइंट फॉर मेजरिंग प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस। नेक्स्ट वन, इन प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग व्हाट डज द लेट फिनिश टाइम रेफर टू? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, द लेटेस्ट टाइम अ टास्क कैन फिनिश विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 to 6, 226 क्या कह रहा है, द फंक्शन पॉइंट्स are derived from which perspective of the software? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, एक्सटर्नल यूजर व्यू। नेक्स्ट वन, which of the following is not a component of WBS? उसका नहीं है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट चार्टर। Next one, what is the term for the total time required to complete the project from start to finish? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। अगेन फिर वो स्कोप क्रीप से रिलेटेड आ गया, देखिए लैंग्वेज का यूज कर रहा है, व्हाट इज द स्कोप क्रीप? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, अनऑथोराइज्ड चेंजेस और एडिशन टू द प्रोजेक्ट स्कोप। ये 3 बार क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन तीनों बार इसकी लैंग्वेज जो है वो चेंज है। नेक्स्ट वन, विच टर्म डिस्क्राइब्स द अमाउंट ऑफ अ टाइम अ टास्क कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट? अच्छा क्वेश्चन है ये वाला एग्जाम के लिए। ए, फ्लोट। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 231, 231, विच डॉक्यूमेंट डिटेल्स the deliverables and the work required to complete the project? Which documents details the deliverable and work required to complete the project? Okay, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, प्रोजेक्ट चार्टर। नेक्स्ट वन, what makes function points a better metric for early project estimation than LOC? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, FPs कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग रिलेटेड टू क्वालिटी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, टू डिफाइन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड मैट्रिक। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 234, 234, which of the following is a collection of project coordination technique
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जिसमें ये तीनों आपके इंक्लूड हो जाएंगे। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजर ट्रेट? प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैनेजर आइडेंटिटी, इन्फ्लुएंस एंड टीम बिल्डिंग, ये तीनों हैं। ये कह रहा है नॉट इफेक्टिव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोजेक्ट मैनेजर्स एक्टिविटी? प्रोजेक्ट मैनेजर की एक्टिविटी नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, प्रोजेक्ट डिजाइन। नेक्स्ट वन, PMCMM स्टैंड्स फॉर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पीपल मैनेजमेंट कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। नेक्स्ट वन, which software project sizing approach develop estimates of the information domain characteristics? ये घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फंक्शन पॉइंट साइजिंग। नेक्स्ट वन, द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, एक पहले जो पूछा गया था वो था लॉन्गेस्ट पॉसिबल, ये है शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम इन विच एन एक्टिविटी कैन बी अचीव्ड अंडर आइडियल सर्कमस्टेंसेज इज नॉन एज, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट, और जो लॉन्गेस्ट वाला था उसका था पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट्स। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ अ जेनरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स अ फीडबैक रिपोर्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, डिप्लॉयमेंट। नेक्स्ट वन, एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज, ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के लिए, सी, इम्प्रैक्टिकल बट पॉसिबल। नेक्स्ट वन, मेंटेनेंस टेस्टिंग इज परफॉर्म यूजिंग विच मेथोडोलॉजी, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, ब्रेड्थ टेस्ट एंड डेप्थ टेस्ट। नेक्स्ट वन, यूज केस डिकम्पोजिशन इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन अ सिस्टम इनटू, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, डिस्क्रीट यूनिट्स ऑफ फंक्शनलिटी। Next one, question number 244. Which of the following is not an adaptation criteria for software projects? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, कस्टमर्स कंप्लेंट्स। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्क टास्क माइलस्टोन्स एंड डिलीवरेबल्स दैट मस्ट बी अकम्प्लिश्ड टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, इसका टेक्निकल नेम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, टास्क सेट। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 246, 246, यूजेबिलिटी इन मैट्रिक्स एनालिसिस इज डिफाइंड एज अ डिग्री टू विच द सॉफ्टवेयर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, इज इजी टू यूज। नेक्स्ट वन, ये फॉर्मूला दिया गया है SMI इक्वल टू MT माइनस इन ब्रैकेट FA प्लस FC प्लस FD ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय MT, हियर MT इज द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A, इन द करंट रिलीज। नेक्स्ट वन, स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ मॉड्यूल I इज गिवन एज, ये फॉर्मूला दिया गया है, व्हाट डज F सिंबलाइजेस हियर, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा D, फैन आउट ऑफ मॉड्यूल I। क्वेश्चन नंबर 249, 249, क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैट्रिक फॉर डिजाइन मॉड्यूल, उसका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कॉम्प्लेक्सिटी मैट्रिक। नेक्स्ट वन, which model is used during early stages of the system design after the requirements have been established, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, एन अर्ली डिजाइन मॉडल। नेक्स्ट वन, डिकम्पोजिशन इज अ प्री रिक्विसाइट फॉर विच अदर प्रोजेक्ट प्लानिंग एक्टिविटी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, एफर्ट एंड शेड्यूल एस्टिमेशन। Yes, question number 252, which of the following is not considered as a risk in project management,
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, टेस्टिंग। नेक्स्ट वन, अ 66.6% रिस्क इज कंसिडर्ड एज, ये आपको पहले बताया जा चुका है। इसमें लो, हाई, मॉडरेट इनकी रेंज क्या होती है, तो आप देख लीजिएगा उसको। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हाई। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मेथड फॉर स्ट्रक्चरल डिजाइन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हैंडलिंग ऑफ लार्ज एंड मोर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट वन, द फंडामेंटल नोशंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डजंट अकाउंट फॉर, इसका करेक्ट आंसर आपका जो है वो हो जाएगा डी, सॉफ्टवेयर वैलिडेशन। नेक्स्ट वन, द प्रोग्रामर्स वर्कबेंच इफेक्ट वेयर टूल्स एनवायरनमेंट impact productivity is often addressed in empirical models through a, इसका करेक्ट आंसर आपका जो है वो हो जाएगा ए, कॉस्ट ड्राइवर रिलेटेड टू टूल यूज। नेक्स्ट वन, 4 types of changes are encountered during the support phase. Which one of the following is not one that falls into such category? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, ट्रांसलेशन। Yes, next one. Which document formally authorizes the existence of a project and provides a summary of project objectives? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, स्कोप स्टेटमेंट। अगला सवाल, which process involves defining quality policies, objective and responsibilities? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्वालिटी एश्योरेंस। नेक्स्ट वन, विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द प्रोजेक्ट्स स्कोप एंड बाउंड्रीज? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कोप प्लानिंग। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 261, 268, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज्ड टू परफॉर्म क्वालिटी कंट्रोल इन अ प्रोजेक्ट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पेरेटो चार्ट। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्कोप वेरिफिकेशन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, टू कंफर्म दैट द डिलीवरेबल्स मीट द रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कंपोनेंट ऑफ अ क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट वन, व्हाट रोल डज अ प्रोजेक्ट स्पॉन्सर प्ले इन स्कोप मैनेजमेंट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, अप्रूविंग चेंजेस टू द प्रोजेक्ट स्कोप। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 265, 265, व्हाट डज द टर्म कन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट्स रेफर्स टू इन क्वालिटी मैनेजमेंट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, मीटिंग द स्पेसिफाइड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट वन, व्हाट डज अ चेंज रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहां पर ए, रिक्वेस्ट टू ऐड एडिशनल फीचर्स टू द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फिशबोन डायग्राम इन क्वालिटी मैनेजमेंट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल कॉजेज ऑफ डिफेक्ट्स। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द स्कोप चेंज कंट्रोल प्रोसेस? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, अ प्रोसेस टू फॉर्मली अप्रूव और रिजेक्ट चेंजेस। नेक्स्ट वन, which quality management approach focuses on preventing defects rather than detecting them? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, एक मिनट वापस देखिए, which quality management approach focuses on preventing defects rather than detecting them? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वालिटी एश्योरेंस। नेक्स्ट वन, What is the focus of the scope control process? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मैनेजिंग स्कोप चेंजेस।
Yes. Next one. Which of the following is an example of a quality control tool? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कंट्रोल चार्ट. Next one. Which document is used to formally request changes to the project scope? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेंज रिक्वेस्ट. Next one. Which quality management principle emphasizes involving all employees in quality improvement efforts? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. यस. नेक्स्ट वन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 274 274. व्हाट डज द स्कोप कंट्रोल प्राइमरली एम्स टू अचीव? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एंश्योरिंग दैट ऑल प्रोजेक्ट वर्क इज कंप्लीटेड as defined in the scope statement. Next one. Question number 275. What is the primary goal of Six Sigma in quality management? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए टू रिड्यूस द प्रोसेस वेरिएशन एंड इंप्रूव क्वालिटी. नेक्स्ट वन. व्हाट इज अ पर्पस ऑफ स्कोप प्लानिंग? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए to create a plan for how project scope will be defined, managed and controlled. Next one. Which quality management tool helps in visualizing the distribution of defects or issues? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हिस्टोग्राम. Next one. What does the 80-20 रूल पेरेटो प्रिंसिपल सजेस्ट इन क्वालिटी मैनेजमेंट? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय 20% ऑफ द इश्यूज. नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकल कंपोनेंट ऑफ WBS डिक्शनरी? इसमें कौन कौन से नहीं है? तो वर्क पैकेज ये वाला इसका हो जाएगा, ये कॉस्ट एस्टिमेट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा. यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा डी रिस्क असेसमेंट. ये रिस्क कैटेगरी के अंदर आ जाता है, इसके अंदर इसका पार्ट नहीं होगा ये. यस. नेक्स्ट वन. विच अप्रोच फोकसेस ऑन मिनिमाइजिंग द वेस्ट एंड इंप्रूविंग प्रोसेस एफिशिएंसी इन क्वालिटी मैनेजमेंट? इस क्वेश्चन को करवा चुका हूं, लेकिन आपकी ओर थोड़ा सा घुमा के और पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए लीन मैनेजमेंट. 300 तक आने वाले हैं क्वेश्चन अपने जल्दी. यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 281. Which of the following is a typical output of the scope definition process? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर. नेक्स्ट वन. Which tool helps analyzing the relationship between the cause and effect in quality management? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए फिशबोन डायग्राम. नेक्स्ट वन. What evaluates the risk associated with the technology to be implemented as a part of the project scope? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी टेक्नोलॉजी रिस्क असेसमेंट. इसी क्वेश्चन को एक थोड़ा अलग टाइप से भी पूछा गया था. नेक्स्ट. When conducting a brainstorming session for risk identification, what is the key principle to maximize effectiveness? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी encourage free flowing ideas without immediate criticism. Next one. Checklists are a common tool for risk identification primarily because they, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी provide a structured approach based on historical data. Next one. Dash defines the business issues that often have significant influence on the project. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी सीनियर मैनेजर्स. नेक्स्ट वन. Dash is not a risk management activity. इसका करेक्ट आंसर है बी रिस्क जनरेशन. नेक्स्ट वन. Dash is a systematic attempt to specify the threats to the project plan. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रिस्क प्रोजेक्शन. नेक्स्ट वन. Dash are associated with overall size of the software to be
बिल्ट और मॉडिफाइड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोडक्ट साइज रिस्क। नेक्स्ट वन, डैश इज नॉन एज द अमाउंट ऑफ द टाइम द सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल फॉर यूज। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए ध्यान दीजिएगा। रिलायबिलिटी। नेक्स्ट वन, ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है। यूजेबिलिटी इन द मैट्रिक्स एनालिसिस इज डिफाइंड एज अ डिग्री टू विच द सॉफ्टवेयर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इज इजी टू यूज। नेक्स्ट वन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पोस्ट एंड शेड्यूल आर अ पार्ट ऑफ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोडक्ट मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन, डैश इज नॉट अ वेब इंजीनियरिंग मैट्रिक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नंबर ऑफ इनहेरिटेड ऑब्जेक्ट्स। हु फर्स्ट प्रपोज फंक्शन पॉइंट्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एल्ब्रेस्ट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 295, बहुत जल्दी 300 आ रहे हैं क्वेश्चन होने वाले अपने। हाउ मेनी इंफॉर्मेशन डोमेन वैल्यूज आर यूज्ड फॉर फंक्शन पॉइंट कंप्यूटेशन। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के लिए। सी, 5। नेक्स्ट वन, डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी डिपेंड ऑन, करेक्ट आंसर सी, बोथ ई एंड डी, यानी ये दोनों आंसर हो जाएंगे इसके। ई यहां पर एरर के लिए आ रहा है और डी आ रहा है डिफेक्ट के लिए। नेक्स्ट वन, क्या कह रहा है, डैश इज द रीजन दैट द सॉफ्टवेयर इज डिलीवर्ड लेट, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द मेंशन। इसमें आपकी तीनों ये जो करेक्टरिस्टिक्स बताए गए ये आ जाएंगे, तो इसको आप पोज करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट वन, डैश इंटरैक्ट्स विद द सॉफ्टवेयर वंस इट इज रिलीज्ड फॉर प्रोडक्शन यूज, ये भी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। इस प्रकार के क्वेश्चन काफी बार आते हैं एग्जाम में। एंड यूजर्स। नेक्स्ट वन, क्या कह रहा है, डैश इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ incurring a loss due to the risk and the potential magnitude of that loss, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रिस्क एक्सपोजर। एंड द लास्ट क्वेश्चन 300 क्वेश्चन, आखिर आ ही गया हमारा ये क्वेश्चन। डैश इज और आर मेन पैरामीटर्स दैट यू शुड यूज व्हेन कंप्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसके अंदर आपके डी आंसर हो जाएगा। इसमें तीनों करेक्टरिस्टिक आ जाएंगे। और इसी के साथ ही अपने 300 क्वेश्चन 300 क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आएंगे और आपके एग्जाम के लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल होने वाले हैं और आपके रिवीजन में भी काफ़ी हेल्प करेंगे। मैंने ट्राई किया था कि इसमें क्वेश्चन हो ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट नहीं हो, लेकिन 10 या 12 क्वेश्चन मेरे को लग रहा है ज़्यादा वो रिपीट हो गए। मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया था, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगे इनको सिलेक्शन में और इनके फिल्ट्रेशन के अंदर, लेकिन फिर भी चलेगा। चलिए, आपको हेल्प भी मिल जाएगी, उसके रिवीजन में कोई इशू नहीं है। और वीडियो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा, और पसंद आ जाए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।